as their name. So make a practice starting from today. So, okay, again, I want this session to be interactive. So say yes, no. If you understand anything, say yes. If no, you do not understand anything, say no. So I would also understand what you want to ask or what exactly your problem area, so we can work accordingly. Okay. I hope you all can see my screen. Yeah. Yes, sir. Okay. Is the presentation visible? Yes, sir. Yes, is visible. Okay. So yeah, Sakya ma'am has given my introduction, but let me tell you in brief what I actually do and why I am giving this session to you guys. Because you will also, again feeling likewise that who is this guy and why is giving the session on online interviews and how to prepare about it and how to perform in it. So let me give a brief why I'm giving this session. So I've cracked many of the interviews in many of the MNCs. Like if I talk about Ahmedabad, then let's say I've cracked interviews in Starlight, which was previously Elite Core. Then I've given interview in and cracked interview in Argisoft, Signet, Aside Technologies, and EC System recently. So EC System is considered the most difficult interview interview program to crack. So yeah, that is the one thing that I needed to tell. And the other companies outside Ahmedabad, I have also cracked the interviews. One of them was in Barclays. So if somebody is familiar with the UEFA Euro Cup and the football leagues, then you know what company Barclays is. It is the official sponsor of football. So yeah, I've cracked interview in Barclays and then AppDocs. So many of the companies I've given interviews. So mostly I had experience of giving interviews in 30 to 40 companies, and most of the interviews I've cracked. And yeah, for when I have started, there was nobody who can guide me. So I've failed in many interviews as well. So I've learned from it and I've adapted to whatever the things that I've done wrong. I had I then get advice from my colleagues and my mentors, and then I'm improved in that. And then things were getting pretty much smooth after 1 or 2 years, and then I was able to crack every interview that I go in. Why? Because one, you need to know how to drive yourself in the interview. Because if the session or the interview is getting driven by the interviewer, you would get less chance to crack the interview, how we would see in this session. Okay, so continuing my introduction. So recently I've joined Globalworks. It has been 10 months. So Globalworks is again a US based company. So because of this pandemic, there are only web sessions or web interviews I'm conducting right now. So I have taken 30 to 40, not 40, even 50 interviews in Java. And I've taken nearly 5 to 10 interviews of tech leads as well. So I also have experience in taking interviews too. So I know where people do mistake and how they would improve that and what mistake they could not repeat. I can tell you that as well. Okay, so yeah, as I said earlier, so that's why I'm giving you this session. And right now, after 6 years of experience, I'm getting more than 1 lakh per month. So that is where I want all of you to be. So interview is a great barrier. Whenever you want to enter any company that you like, interview is the greatest barrier. Once you enter that barrier, nobody could stop you. If you are good at technical things, then nobody can stop you. But I've seen that for many technical people, this interview has been a great barrier for them, only because they do not know how to drive the interview and how to perform in it. Do you have any questions, guys? No, sir. Okay, so let us start. So before starting, again, I'm reminding you, I've, I've noted down the points that I feel that it is useful to you.
There might be a case that I miss out something. So if you find anything in between, just raise your hand or raise your voice in between. I would not mind. Ask me anything in between and I'll answer. Ask me any other topic related to interview, I'll answer. Even you can ask technical questions as well. So there is no issue in that. And I would like more if you interact with me in a better way, because I do not know any of you guys. So it would be better for me if you ask questions so I would know everyone, or at least few of you, so I would understand and drive this interview or this session pretty much better. Okay, so let's get started. Okay, before starting, are you guys familiar with English, Hindi, Gujarati? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, I'll be switching from Hindi and English, because I guess some of you are from outside Gujarat, so I'll be switching from Hindi and English, and we'll use these two language. Let me know if you guys have any trouble. Okay, let's get started. So these topics we would cover today. One is pre-interview preparation. So it is very much important before giving interview, do some preparations. So yeah, there are some technical preparation, but before that, even if you are prepared technically, there are few things that you need to take care. We will see what are those things. Groom yourself. So whenever you are giving an online interview, you need to have a good look, not in terms of how your face is going to get seen on the screen, but yeah, you need to have proper gestures and postures, and you need to have at least a professional attire whenever you are giving any online interview. Even in offline interviews, you need to groom yourself to get a pretty good first impression. The third is getting started. So when I say getting started, you need to know how to start a conversation with interviewer, because the first impression would last long. Trust me. Do's and don'ts during the interview. So we would see what we need to do to have a good impression on the interviewer, what we should not do. Practical examination. So whenever we are giving any of the programming interview or any of the interview which has a technical background, would require a practical examination. So we'll see how would we perform in practical examination and what things we need to take care in that. Concluding the interview. We cannot stop the interview abruptly and say bye-bye. We cannot do that. We usually conclude the interview in a pretty much healthy manner. How would we do that? We will see that as well. And taking up the follow-up. After the interview, you should take the follow-up from the company. Why it is important, we'll see that as well. Any questions in here? No, sir. Okay. So let's go to first topic. Okay, so I've taken down some notes, so you guys could not miss out any of the elaborations that I will be telling you. That's why I've taken notes. So I'll be continuously seeing into that. Okay. So first you need to check company's background. Whenever you are applying for any company, you should check its background. When I say background, that includes a lot of things. You need to know the company's products or company's projects, what kind of project they usually do, what sort of areas of interest of that particular company. Not only that, you need to know your job role and what would be your exact job. You would understand that as well. So how would your job role would fit into particular company's particular role or particular project? You need to understand that well. Why it is important? Because during the interview they may ask you about company and about your role and how would you fit in. So this is why this is very much important. And checking out the Glassdoor reviews and interviews. So some of you guys might be aware about this Glassdoor interviews, and some of you may not. So let me show you guys. So Glassdoor is a website where
Glassdoor is a website where you can review a particular company. You can see others' reviews. You can see how usually interviews are getting held in this company. So yeah, that's pretty much it. So let us see Glassdoor. So this is the Glassdoor page of the company that I was working 3 years back. It's of Starlight, and you can see reviews in there of that company. You can see salaries, so you can get the ideas about. So if you are joining as software engineer, you would know this much you would be earning. You can also, this is the important section we need to go through before the interview, so you would know what kind of interview questions they might ask. Okay. Sorry. Okay. So this software architecture interview is held by some anonymous employee, and he's saying that they ask this interview question of implementing Fibonacci series. Let's see about other why recursion is better iteration by program is calculated. So we are aware that if we are going into interview, the questions will be dynamic. They can ask anything from anywhere. So even in my case, whenever I take interview, I ask puzzles. I ask people about other data structures which are not even part of Java, even if I'm taking Java interview. So the questions that they might ask will vary, and it varies a lot. It is not going to come from a textbooks, or it is not going to come from any of the book that you have read in your academics. So it is pretty much important to understand what kind of question that company asks. So that is why this is important. You need to see about the company and the interview that they conduct. And it's pretty much helpful if you have somebody who is working in the same company. You can ask them as well. Any questions in Glassdoor? Hello. No. Okay. Okay. Yes. So when should you do this exercise? So you should go through all interview questions and answer a day prior. So you should need to do this in earliest basis, because after seeing the questions, you can prepare for the similar questions or the interview technique. Okay. So this thing tests your mic, speakers, internet connectivity prior to the interview. Yeah, you need to do that before an hour or before half an hour of the interview. So you usually I've seen this thing that people joins in the interview and they take a lot of time, adjusting themselves to the background lights, adjusting themselves with the mic. Even they have sometimes headphone, they sometimes do not carry headphones, so they usually talk with speaker, and that has a lot of background noises. So we should avoid that. It will bring a lot of negative impact on an interview, trust me. Yes, so this is again saying the same, that choose interview spot. You should choose this wise spot where you have a good background, you have a good lighting on your face, so your face would be visible, your expression should be visible, your hand movements should be visible. If you're whenever you are answering, yeah, you should wear headphones. So for eliminating noises, you should wear it. Avoid distraction. So what I would say for avoiding distractions, you should turn off your phone. You should keep it silent. And also, right now we had one distraction from WhatsApp. You have already seen. We should avoid that as well. So during interview, no for this. Okay, any questions in this? No. Yes, sir. Hello. Yes. Hello. Can you please explain the point, last third point once again? Check interview spot. So Choose when I say interview choose spot. interview spot, so whenever you are giving online session or online any interview online, you should choose a spot in your house. You have to choose your spot in your house, and it has to be with proper background. It should not happen that you sit in the kitchen and the background shows your wardrobe and the kitchen utensils.
So it will not going to give a good impression. So you should have a background where you have, at least a plain background. You should have a good light on your face, and at least you should have a closed room where there is no outside noise. तो मैंने देखा कि काफी सारा टाइम बाहर से व्हीकल्स आते जाते उसका आवाज आती है, एंड दिस शुड नॉट हैपन. दिस विल क्रिएट वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर एनी इंटरव्यू. ट्रस्ट मी. Getting the point? Sir, is there needed white background? No, it is not necessarily white background. It can be any background, but it should be plain. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे मैंने बोला कि किचन में खड़े हो, पीछे किचन के यूटेंसिल्स है एंड पीछे बाथरूम है, somewhat like that. It will give a very wrong impression. Got it, sir. या एंड मेन चीज ये है कि आपका कैमरे में विजिबिलिटी होनी चाहिए. जो कैमरा है उसके ऊपर आपके फेस के ऊपर लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर. ऐसा नहीं होना सोते सोते इंटरव्यू फिर नहीं देना है. सो सिट प्रॉपरली और फेस आपका सामने हो. यूजुअली यू शुड लुक इंटरव्यूअर इन द आईज एंड आंसर. क्योंकि ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जब भी इंटरव्यू लेता है ना, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला अभी ट्वीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इज ही टाइपिंग? Is he looking somewhere else for the notes? Is he looking somewhere else for the cheat codes? No, it should not happen. Clear? Okay. Okay. So I do not see anybody has turned on the camera. So do we do this session likewise? Nobody turns on the camera, so nobody can see. Just asking, not sure. You can answer in Hindi as well if you guys have any problem. I have no issues. So beside writing anything in chat, you can directly ask or say. That is okay. Because I would not going to read chat again because I'm presenting everything over here. Okay, so I'm receiving no feedbacks. I'm continuing again with the interview session. Going to the next slide. Okay. So this picture actually describes my situation right now. I have a good jersey wear right now, and I have shorts. Yeah, so this should not happen whenever you are giving online interviews. Yeah, that is okay if you are wearing a shirt or a professional attire and your camera should not see what you wear below, but this should be it. The interviewer should see whatever you wear, it has to be a professional attire. And okay, so coming to gestures and posture, you have to be confident. So that has to be shown into your face. So whenever you are answering, be confident. वो सब बहुत करते हैं लोग whenever you are answering. So you have to be confident. Even gesture और posture से भी पता चल जाता है. If you are looking down, if you are thinking likewise, if you are looking like that, oh, you should not do that kind of postures or gestures. Sir, I have one question. Tell me. Sir, is it good to speak slowly in interview? Because if we speak slowly, we could have a little time to think about what we are going to answer next. It is pretty much good if we speak slowly, because इसमें कैसा होता है, whenever you are giving online interview, if you speak slowly, तो एक्चुअली आपका ही अच्छा इंप्रेशन होता है. क्यों? क्योंकि इसके पास दो रीजन है. एक तो आप अच्छे से स्लो होके बोलोगे, नो डाउट इतना भी स्लो नहीं होना है. हाँ मतलब हाँ इतना भी नहीं. यस. सो आपको पेस मेंटेन करनी है, बट स्लो हो तो स्लो ही बेटर रहेगा, क्योंकि सामने वाला भी अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. तो इस तरीके से ही आपको बोलना है, स्लो होके सोच के बोलना है, क्योंकि सोचे बगैर अगर बोल दिया, मेरे जैसा इंटरव्यू होगा ना तो वो रिजेक्ट ही करेगा. तो यूजुअली ऐसा होता है. हाँ वही होता है सर कि बिना सोचे बोलते हैं तो ये वाला बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि फिर बोलते बोलते हम फिर
हमारे पास वर्ड्स ही नहीं रहता है कि आगे अभी बोलना क्या है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, इट हैपन्स, इट हैपन्स। और ये आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो ये एक्सपेक्टेड ही होगा। मैंने अभी तक जितने, नो डाउट मैंने इंटर्न्स के इंटरव्यू बहुत टाइम पहले लिए थे, बट आई हैव सीन दैट कि लोग ज्यादा काफी मतलब इंस्टेंटली नर्वस हो जाते हैं। एक आंसर भी नहीं दिया होता वो नर्वस हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट इवन इफ दे नो द आंसर, वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो फिर सोच ही नहीं पाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काम योर नर्व्स बिफोर यू गो इनटू इंटरव्यू। और इसके काफी सारे उपाय हैं आप कैसे कर सकते हो। स्लो बोलना है, दैट इज वन, बट स्लो कैसे बोल पाओगे? लोग चाहते हैं कि स्लो बोले और पूरा कन्वे करे जो वो बोलना चाहते हैं, पर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो अंदर से आप शांत नहीं होते हो, राइट? तो वो करने के लिए क्या होता है, वो करने के लिए क्या होता है कि देर आर फ्यू टेक्निक्स। मैं यूजुअली कैसा करता हूँ, मेरा कोई इंटरव्यू अभी तो मतलब मैं काफी सारे इंटरव्यू देके मैं यूज टू हो गया हूँ, बट पहले मैं क्या करता था, whenever I have interview I used to listen songs. मैं prior to 10 to 20 मिनट में सॉन्ग सुनता था। देन देर आर सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हो। सीक्वेंस जो आपका ब्रीदिंग का है, अगर वो अच्छा हो गया, 6-3-6-3 वो उसकी टेक्निक्स है, 5-1-5-1 उसकी, 5-2-5-2 उसकी टेक्निक्स है। मतलब 5 बार सांस अंदर लो, स्टॉप फॉर टू इटरेशंस एंड देन 5 बार फिर से सांस निकालो। तो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट यू कैन ट्राई इट। और ब्रीथिंग टेक्निक मुझे तो बहुत हेल्प किया है, और उससे मैंने काफी सारी जगह पे ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जहाँ पे मैंने एकदम कामली इंटरव्यू दिए हैं। मैंने जो भी मेरे मन में था मैं वो एक्सप्रेस कर सका हूँ, क्योंकि पहला प्रॉब्लम तो यही आता है कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो जो भी आप सोच रहे हो मन में, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो, राइट? तो देर Right, आर sir. फ्यू टेक्निक्स दैट यू कैन अडेप्ट टू, और ये सबका सॉल्यूशन एक दूसरा भी है विच नोबडी वुड शो यू इवन इन एकेडमिक्स, और यहाँ पे कंपनीज में भी नहीं सिखाते। बट या यूएस में ये ट्रेंड चालू हो गया है, और हमारे में भी ये ट्रेंड आएगा, बिकॉज इट इज प्रिटी मच लॉजिकल एंड द सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, I'm not sure people are doing right now or not, but meditation would help in hell lot of things. बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, नॉट ओनली गिविंग इंटरव्यूज, इन परफॉर्मिंग बेटर एज वेल। या मूविंग फॉरवर्ड, look forward and try maintaining eye contact with the camera. As I said earlier कि आपको कैमरे में देख के बात करनी है, और यूजुअली ऐसे ही देख के बात करनी है, क्योंकि आप फेस टू फेस इंटरव्यू देते हो तो ऐसे ही करते हो, राइट? यू आर नॉट आंसरिंग। कुछ पूछा है जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या पसंद है, हाँ मुझे वो पसंद था, वो पसंद है, नहीं मैंने प्रोग्रामिंग इसलिए किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं बोलना है, वो बहुत खराब इंप्रेशन जाएगी। दूसरी चीज, ये लुक फॉरवर्ड, मतलब ये ऐसा पोस्टर रख के, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह रख के क्यों बात करनी है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि यू आर नॉट गोइंग टू टाइप समथिंग, और दूसरे वेब ब्राउज मतलब कोई भी टैब खोल के आप सर्च नहीं कर रहे हो जो भी आंसर आ रहे हो वो। तो इसीलिए आपको चीट कोड भी नहीं बनाने हैं, वो बुक में लिख दिया और फिर आप वहां पे नीचे देख के बात कर रहे हो कि हाँ हाँ ये है, यू वुड अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। एक्सपीरियंस होगा तो 1-2 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि ये चीट कर रहा है, और इवन इफ ही और शी विल कंटिन्यू द इंटरव्यू, रिजेक्ट करेगा। तो वो सब चीटिंग करना तो छोड़ ही दो। दूसरा कि ये स्ट्रेट मुंह इसीलिए रखना है कि हम कोई इंप्रेशन ऐसी ना दे कि हम चीट कर रहे हैं ऐसे। So that is why looking forward is important. Okay, make your hands visible while answering. जो so आपने भी देखा होगा, अभी मैं बात करता हूँ तब हैंड्स विजिबल करता हूँ काफी टाइम। नो डाउट मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, बट आपको इंटरव्यू के वक्त ये सब चीजें करनी है। वाई? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि आप चीट हकीकत में नहीं कर रहे हो, क्योंकि काफी सारे लोग को वैसे भी पता चल जाता है अगर आप चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि आप आंसर स्लो दोगे, कोई भी सर्च करोगे गूगल में से, देन यू विल आंसर। काफी सारे लोगों को पता चल जाता है। बट आपको स्केप्टिकल लोग जो भी है ना, जो इंटरव्यू काफी सारे लोग स्केप्टिकल है वो लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यूअर भी हर टाइम इतना नॉलेजेबल होता है और इतना स्ट्रक्चर्ड होता है कि आप उनको सब चीज से सेटिस्फाई कर सको। तो इन दिस केस ये वन ऑफ द रीजन है कि आप स्केप्टिकल हो तो हाथ ऊपर करके, मतलब कोई भी तरीके से आंसर देके यू कैन मेक श्योर कि उनको पता चले कि आप टाइप नहीं कर रहे हो। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस इन दिस? Sir, I have one question about that. If
I do not about the answer of that any of the question during the interview, then what I have to reply in that question? Usually, you simply answer no, I do not know that. Because if even if you make up any answer, it will not going to give any impression to the interviewer. Usually, interviewer ऐसे काफी इंटरव्यूअर मैंने देखे, अगर आप गलत आंसर कॉन्फिडेंटली दो ना तो वो मान जाते हैं. बट वो चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरे साथ ये ट्राई किया है. कॉन्फिडेंटली इतना गलत आंसर देंगे ना, यू वुड नेवर नो कि ये बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. इतना कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे तो बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, ये आंसर होना चाहिए. बट इंटरव्यूअर जो सही होगा ना, वो काउंटर क्वेश्चन पूछेगा और आप पकड़ा ही जाओगे. So if you do not know anything, answer no, I do not know it. And Would it sir, have- what about group interview? Come again. What about the group interview? Like in the group of the members, like interviewer asking the question about the Java, or like the interviewer question that how can I explain between all of the group and individually? Okay. आप है ना, यूजुअली ग्रुप इंटरव्यू तो अभी मैंने देखा नहीं है, काफी सारी जगह पे नहीं होते इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू. डिबेट से ऐसा कुछ में वो करते हैं, बट ग्रुप इंटरव्यू यूजुअली यहाँ पे अहमदाबाद में तो कहीं पे भी कंडक्ट नहीं होता. बट अगेन, अगर ग्रुप इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना है ना, यू शुड रिमेन काम. और जब एक पॉइंट आए आपको माइंड में पॉइंट्स रेडी रखना है कि आपको क्या बोलना है. जब पॉइंट आए कि सब लोग साइलेंट हो, देन यू शुड पुट योर पॉइंट. और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए ना, थॉट थ्रू होना चाहिए. कुछ भी बोला ऐसा नहीं चलेगा. जो अच्छा बंदा होगा, जो देख रहा होगा, उसको पता होगा कि ये बंदा कुछ बोला और साइलेंट मोमेंट के वक्त बोला, बिकॉज इट इज प्रीटी मच ह्यूमन थिंग कि कोई मतलब स्टॉप तो होगा ही इन बिटवीन. सॉरी. सो तब आपको बोलना है, आपके पॉइंट रखने हैं, और तभी आप कंटिन्यू करोगे तब तक जब तक आपके पॉइंट खत्म नहीं होते हैं. तो यूजुअली ऐसे ग्रुप इंटरव्यू में आप कर सकते हो. बट आपने कहाँ पे देखा? एंड हु इज दिस? क्या नाम है आपका? Jigar sir. जिगर. यस जिगर. हाँ sir. हाँ, आपने कहाँ पे देखा है ग्रुप इंटरव्यू? No, sir, but I can see that all of this group discussion, but about the interview process, I just saw that like group discussion, a personal interview, like all of this kind of thing. ओके ओके. Not a यूजुअली particular way. हाँ, यूजुअली आपका जो प्लेसमेंट होगा ना, उसमें ग्रुप इंटरव्यू शायद ही हो. यूजुअली कैसा होता है कि ग्रुप में से सिलेक्शन के वक्त दे यूजुअली गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जाम, आइदर प्रैक्टिकल एग्जाम और थियोरेटिकल, जैसे कि जावा सर्टिफिकेट में आती है, वेर यू हैव फ्यू क्वेश्चंस 20 to 30 और जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर राइट करना है. तो यूजुअली दैट हैपेंस. ग्रुप इंटरव्यू जैसा कुछ अभी तक तो नहीं देखा है मैंने. ओके. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sir, if we know the answer but we get nervous, then what we should do? Calm yourself. That is the only solution. So ask for water. आपको है ना, मतलब स्मार्टली एक्ट करना है इंटरव्यू में, है ना. आप स्मार्ट होगे, आप ड्राइव करोगे ना, आपको नहीं आता है, स्टिल यू कैन विन. मैंने ये देखा है. आपको नहीं आता है मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% नहीं आता है. इवन इफ यू नो 70% what has been asked in the interview, still you can crack. ये सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं. जैसे नहीं आता है तो नो बोल दो. तो उसमें कैसा होगा कि एक नहीं आता है तो यूजुअली इंटरव्यूअर भी उसके ऊपर सवाल नहीं पूछता है, फिर दूसरे सवाल पूछता है जिसमें आपको आता है. और फिर ये देखता है कि 40 to 50 मिनट के इंटरव्यू में जो भी आंसर आपको आए हैं उसका इंटरवल कितना था. तो यूजुअली नो बोल दिया, उसका इंटरवल तो 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि तब नर्वस हो जाओ जब आंसर दे रहे हो, आपको आता है तो भी. तो इन दैट केस आप स्मार्टली एक्ट कर सकते हो. आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग. सो उसमें आप क्या कर सकते हो? मैं यूजुअली ऐसा करता था कि आई विल आस्क फॉर वाटर, कि पानी मिलेगा. और आप ये भी कर सकते हो कि आप फिर से एलाबोरेट कर सकते हो आपका क्वेश्चन, इवन इफ यू नो द क्वेश्चन. बट ऐसा बहुत टाइम नहीं करना है, क्योंकि वो भी खराब इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप हर एक क्वेश्चन में रीट्रेट करने का बोलते हो इंटरव्यूअर पर. हाँ, बट वो इन दैट केस द सॉल्यूशन इज काम योर सेंसेस, और उसके लिए टाइम चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजें कर सकते हो.
ask for water, tell interviewer to reiterate, और ये भी कर सकते हो आप अभी मतलब नर्वस हो गए हो, यू नो कि आप नर्वस हो गए हो, दैट इज प्रीटी मच गुड. पहले तो लोग को पता ही नहीं चलता कि आप नर्वस हो गए हो, खुद को नहीं पता चलता. पता चल जाता है, देन यू शुड काम योरसेल्फ. और यूजुअली ये है ना 2 सेकंड की ये प्रोसेस है और उसमें हो जाता है पूरा, इफ यू आर एक्सपर्ट इन दिस. तो इसके बाद आप सोचना स्टार्ट करो, वन सेंटेंस धीरे धीरे बोलना चालू करो. जैसे अभी बोला, वो धीरे बोलने से वो सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर. बट अब इंटरव्यू जो इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो वही क्वेश्चन पे अगर दूसरी बार पूछे तो आंसर ना आए तो फिर से अगर क्या करना चाहिए, दूसरी बार वही पूछे तो? दैट इज वाई. अच्छा, यूजुअली वही क्वेश्चन दूसरी बार नहीं पूछेगा, वही क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन दूसरी बार फिर पूछेगा. एम आई करेक्ट? ओके. यस सर. या सो ऐसा होता है. इसीलिए स्टार्टिंग में जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन पूछा है एंड समबडी आस्क यू अबाउट बाइनरी ट्री, इफ यू डू नॉट नो टेल देम नो. अगर यस बोला तो उसके बाद प्री पोस्ट सब आपको इटरेशन लिखने का बोलेगा एंड यू वुड नेवर गोइंग टू डू दैट. सो यस, उसमें एक ही चीज है, अगर आप नर्वस होते हो यू शुड काम योरसेल्फ. और उसके अंदर ये सब उसके रेमेडी है कि आप कैसे उसके लिए टाइम निकाल सकते हो. यस सर. ओके, एंड वो इज दिस अगेन. हेलो तो अभी सर. मैं सिर्फ जिगर को जानता हूँ. दूसरा अभी क्वेश्चन किसने पूछा? प्रांशु शाह. कम अगेन. प्रांशु. हेलो. Yeah, यस hi. सर. Okay, thanks. Hello. Am I audible, sir? Yes, I guess this is Prijita, right? Yes, sir. Yeah, yes, Prijita. Sir, right now you said if you don't know what is binary search, then it would be better that you say reply to them that I don't know. So what Right. if I know the concept and I don't know the practical implementation behind it? Okay. Then what should be the normal response that I should give? Yeah, of course. So whatever you know, tell them. So if the same answer that you gave me, you can give it to interviewer. So he would know, yeah, she understand the concept, but practical she have never done it. So that is okay. So he will still ask you the functional question itself. So that is totally okay for you. So yeah, you can go ahead with the truth. So tell the truth. That is the base. Don't make it up. Okay. Okay, sir. Should we go ahead or somebody want to ask? No, sir, you may go ahead. Okay. Okay. So yeah, we have done all of the preparation and now we are at the verge where we need to give the interview. So how would you start? Okay. Let us make a pretty much interactive. So I know Jigar, so let us start with Jigar. Jigar, can you introduce yourself? Yes, sir. Tell me. Am I audible, sir? Yes, you are. Okay, yes, sir. Good morning, sir. I'm Jigar Trivedi. I'm basically completed my graduation from Marwadi University, and I completed my MCA from GLS University, and I'm applying for this interview for the PHP developer as a PHP developer. Also, I want to interest in some gaming or also from reading some books like a general knowledge and all of this. And also, I like that editing of the media editing, like graphics editing, VFX editing. Because of during the graduation and my master, I also applied for the animation job, and also I did that. So I have also experience in VFX as a VFX artist during this my education, and also I want to like tester of the engineering tester is like
software tester and also technical tester as well. And that's it. Great. Thank you, Jigar. That is very good introduction for a start, per se. Good. Thank you, sir. Thank you. Good. Any other volunteer? If not, then I'll choose myself randomly. Sir, Yeah. sorry to introduce. Sorry to interrupt. Yeah. Sir, if I am going to like in this way, in between any of the points, you may have to add this. Like आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, like it. So, is that a question that what modification you should make during the introduction? That's what you're saying. Okay, yeah. Yeah, we'll see that. We'll see that in the introduction part. I have a lot of points to cover in this in the introduction because it gives you the first impression. Yeah, we'll see that. Okay, sir. Okay, Yash Gajjar would introduce. Zakia ma'am is saying. Yeah. So, am I audible, sir? Yes, you are, Yash. Okay. Good morning, sir. I'm Morning. Yash Gajjar, currently pursuing my MCA from GLS University. I did my bachelor's from KSV University, Gandhinagar. Okay. Yeah. So, if we talk about my interest according to the technologies, I'm more into backend than front end. Right. So, I have pretty much moderate experience in working in Java technology, especially in Servlet and JSP. Okay. So, and I have pretty much good command on creating web applications using MVC patterns with Servlet and JSP. So, I'm currently, my area of interest is web development, as I have pretty much good experience in JSP and Servlet. So, yeah, and also, let's say, yeah, that's pretty much about currently, I would say. It Okay. was a sudden introduction. So, yeah. That is totally okay. I mean, if somebody has asked me, if I were you in the last semester and somebody would ask me, I would, have felt. So this is pretty much okay and pretty much cool that you guys can, answer this abruptly. So it's a good job. Yeah, thank you, sir. Okay. So, yeah. So that was a good introduction, but there are a few points that I need to make or I need to highlight while we are introducing. So one, you need to make sure that you have read the role which you are applying for और उसके ऊपर ही एनहांस करना है. तो जैसे कि अभी रोल है आपका which is AI डेवलपर जो आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो AI की रिलेटेड आपको चीजें बतानी है एंड यू शुड हाईलाइट द पॉइंट्स विच आपके अचीवमेंट उसमें दिखे. जैसे कि अभी तो जैसे कि अभी मैं यूजुअली बोलता था whenever I used to give interview as an intern, so I used to tell people that I have taken part in many of the coding events and I won one of the event which is a tablathon. So tablet के अंदर coding करना था, that I won. It leaves a very good impression, trust me. Before that, you can also add your grades. If you have good grades, it will also leave a very good impression. So अच्छे grades है वो भी आपको बताना है वहाँ पे as a first second standard के नहीं, but yes of MCA and from BCA. Sir, can we highlight our achievements in websites like HackerRank or any other coding websites? Of course, that would leave a very good impression if you have something which is, you have good points in Stack Overflow. If you have good points in GitHub, then it will leave a great impression. Trust me. So, Okay, thank you, sir. yeah, of course. So you can highlight that, and you can also highlight that in your resume as well. So interviewer will ask questions related to that. Okay, so also your introduction should be structured. ऐसा नहीं हो आप हाफिजार्डली कुछ भी चीजें बोलते हो.
आपको वहाँ पे आपका नाम बताया, आपने रोल के रिलेटेड कुछ बोला, फिर आपकी हॉबीज के रिलेटेड बोला. नो डाउट यू कैन इंट्रोड्यूस योर पर्सनल हॉबीज एज वेल, बट उसके अंदर ऐसा नहीं चाहिए कि आई लाइक क्रिकेट एंड स्टफ लाइक दैट. तो ऐसा बोलना चाहिए कि रोबोटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है, बिकॉज यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर एन एआई डेवलपर. तो रोबोटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है. बट ऐसी चीजें भी नहीं बोलनी है जिसके बारे में आपको थोड़ा भी नहीं पता. जैसे कि ऐसा कोई बोल दे, पायलट के इंटरव्यू में कोई जाता है एंड समबडी टेल कि मुझे प्लेन उड़ाना तो बहुत अच्छे से है, मतलब बहुत पसंद है मुझे उड़ाना ही है. एंड देन द इंटरव्यू would ask you first thing what I need to do after getting into plane if I am a pilot. If you do not know, then do not include it in your interest. तो जैसे कि कुछ चीजें पता है, जैसे कि मैं अभी तो पहले जावा डेवलपर था, बट स्टिल आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एआई एंड रोबोटिक्स. तो मुझे काफी सारी चीजें समराइज वे में पता है. तो ऐसी चीजें ही आपको बतानी है. तो इंटरेस्ट बताओ, विच इज वेरी गुड. आपको पता भी चलेगा कि ये बंदा एंथुजियाज्म वाला है. तो ट्रस्ट नहीं. दूसरी चीज ये है कि आप एंथू दिखो इंटरव्यूअर को. अगर आपका मोरल लो है, एंड इवन इफ यू आर गिविंग गुड आंसर्स, सामने वाला बंदा आपको सिलेक्ट नहीं करेगा. कीप योर एंथुजियाज्म विथ यू. आप इंटरेस्ट दिखाओ. आपको पहले गैदर करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है. सो वो जो रिज्यूम बनाओ ना, वो बहुत सोच के बनाना. पुट योर थॉट्स इनटू योर रेज्यूमे. और जिस जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो वो सब भी वहां पर रखना. Somebody wants to say something? No, sir. Okay. Okay. So whenever you start for an interview, the introduction is the first part. And yeah, as I mentioned earlier, वो structured way में होना चाहिए. Tell your name और रोल के मुताबिक आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप बता सकते हो. जैसे कि टेक्निकल लीड की इंटरव्यू के लिए मैं जाता हूँ, तो आई वुड से आई हैड एक्सपीरियंस इन जावा डेवलपमेंट. Not only that, I have managed team of 4 to 5 people, or let's say 10 people. So this sort of things you should introduce in the introduction. Not only that, you can, as I've said earlier, you can also mention your achievements and highlight that so they would know. Okay, talk relative information. Yes. So जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है. No, he do not care even if you like football or cricket. Not interested. Okay, so here comes again, as I mentioned earlier, do not cheat while you are giving interview. So interviewer को पता चल जाएगा एक्सपीरियंस है अगर आप चीट कर रहे हो. If you are opening new browser tab and you are typing something, you would know. Keep answers short and simple. Elaborate only if asked. जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि आंसर को हमको कैसे कोई भी क्वेश्चन के आंसर में हम काफ़ी सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, बट उसके अंदर स्कोप कितना रखना होगा ना, दैट वी नीड टू डिसाइड. एंड अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ओके, अभी सबको जावा तो आया होगा राइट, एकेडमिक्स में पढ़ने में. सो आई गेस एवरीबडी वुड नो द बेसिक्स. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, so let me ask you a question. So what is define inheritance? Simple. It is used for reusability of property. Wait. Whenever you are answering, just tell me your name. Then then Hi, I- sir. My name is Hardik Patel. Yes, Hardik. Tell me. Good morning, sir. Morning. So it is used for reusing property and functionality of base class from to derived class. Whenever we use inheritance, so the concept of inheritance is reuse the code. Okay. So Okay. the Okay. basic- Got it. Any other volunteer? Yes, sir. Can I? Yes. Who is this? Sir, this is Paras here. Yes, Paras. Tell me. Sir, actually, the inheritance concept is created for using characteristics of base class for derived class, where we use extends keyword, where
class A extends B, so we can say class B's characteristics will be used in class A, as I said earlier, base class and derived class. So this is the short concept of inheritance. Sir, Good, get good. Anyone else? We have 90 people, nobody else. Okay, let me check. Vimal. Who is Vimal? Yes, sir. Yes, Vimal. Can you answer this? Define Yes, sir. inheritance. Tell me. Yes, sir. Inheritance is a one kind of OOPS concept. It means that inheritance uh, is a class relationship, two class relationship between, and it is a OOPS mostly used for reusability of the code. Okay. Okay. Fine. Any other? Yes, sir. Jill, myself, Yes, Jill. tell me. Um, Just tell me. Inheritance is a concept in which the base class, whatever the properties and methods it have, the another class can acquire all the properties and methods of that class. Okay. True. Okay. So I've heard a lot of answers as of now. So yeah, all are correct answers. Okay. Now hear my answer. So whenever somebody asks introduce inheritance, what I would rather say, inheritance is a concept where you can derive parents' properties into child class or a child object. And let's say if we have a person as a parent class, we can have a lot of childs to that class. So Right. who's this again? Yes, sir. Mahek, sir. सो Okay. मैं यही आंसर कब से वो सोच रहा था कि ऐसा बोल सकते हैं वो लोग कि पेरेंट है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप करके. Just tell me. मतलब डायरेक्ट एग्जांपल्स जाने का. करेक्ट, डायरेक्ट नहीं. As I've said earlier कि पहले मैंने ये बताया कि we inherit the property from the parent class to child class, and that is why inheritance is important. Now I'm saying that there is a parent class called tree, and that tree have a lot of child classes like banyan tree, mango tree, and other trees. So if you give relative example, if you give real life example, it will give a great impression to any interviewer. क्योंकि इसमें कैसा होता है कि इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप टेक्निकलिटी पे कोई नहीं पूछता, कि ऐसा नहीं होता कि आप सिंटेक्स के ऊपर कोई पूछेगा कि उसमें एक्सटेंड आता है कि इंप्लीमेंट्स आता है. एंड इफ समबडी आस्क यू, वो कंपनी ज्वाइन मत करना, क्योंकि ये सब चीजें हैं ना, बहुत सिंटेक्टिकल कोई नहीं पूछता. इफ लॉजिकल चीजें यही होती है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग क्यों है, हम सॉल्यूशंस क्यों देते हैं, कोई भी वेबसाइट क्यों बनती है, टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी रियल लाइफ में समझोगे, रियल लाइफ में आप उसका एग्जांपल दे सकोगे, दैट कुड लीव ग्रेट इंप्रेशन टू एवरीवन. गेटिंग इट? Yes, sir. Any questions? Yes, sir. Any question? Sir, No. if possible, we give in example in every answer, means अगर थोड़ा सा भी concept हो तो उसमें भी. Come again. I guess it is Pranshu, right? Yes, sir. Yeah. Can you repeat? मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर आंसर शॉर्ट हो लेकिन अब हम उसको एग्जांपल के साथ कंपेयर करें तो वो हमारी इंप्रेशन कर सकता है इंटरव्यू के Of समय. course. If you give example, interviewer who are logically sound would very much like it. क्योंकि अच्छे इंटरव्यूअर को यही पता करना होता है कि सामने वाले का दिमाग चल रहा है कि नहीं और सही जगह पे चल रहा है कि नहीं. क्योंकि कैसा होता है कि प्रोग्रामिंग हर लोग करते हैं, प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम करना इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पता है आपने कैसे किया. एक प्रोग्राम यू कैन राइट इट इन 100 ways, राइट. आपका दिमाग चलेगा तो आप कोई भी एक वे ढूंढ ही लोगे. तो वही फाइंड करना इंटरव्यूअर चाहता है कि कैन यू राइट डाउन योर ओन अल्गोरिदम,
और एग्जाम्पल दोगे ना वो क्लियर होगा कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन राइट इट डाउन. यस सर. Okay, let us move forward, or anyone wants to say something? You can also add the information with me, if I missed something. If you have some suggestions, you can also add up. No issues. We are not just asking questions over here. Okay. Sir, Yeah. sorry to interrupt you, but No if issues. we complicate course like CDEC, and then we put in resume. Of course, yes. So there has to be another section in your resume where you can highlight your achievements. And if you have, let's say, 3 or 4 achievements which you need to highlight, तो आप इंट्रोडक्शन में ही वो भी बता दो, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूअर है ना, जब इंटरव्यू लेते हैं ना तभी रिज्यूम हाथ में लेते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि हाफ ऑफ द इंटरव्यू पे वो आपके दूसरे पेज पे पहुंचे जहाँ पे आपने अचीवमेंट्स लिखे हैं. सो व्हेनेवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग, तो वहाँ पे ही आप बता दो. प्लस आप रिज्यूमे में भी वहाँ पे लिख सकते हो, सेक्शन होता है उसका अचीवमेंट का, बट वो लास्ट में आता है यूजुअली. Okay sir, thank you. वेलकम. ओके, सो अभी हमने देखा इस तरीके से कि ट्राई टू गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स. वो मतलब नेसेसरी है अगर आपको अच्छी इंप्रेशन वहाँ पे दिखानी है तो. आई होप एवरीवन गेट इट. मूविंग फॉरवर्ड. Yes, sir. Okay. ओके, सो आप एक बार, यूजुअली अभी तो हर एक कंपनी में ये मैंडेटरी हो गया इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एमसीए बैकग्राउंड. इवन प्रोग्रामर की आप एग्जाम दे रहे हो, प्रोग्रामर का इंटरव्यू दे रहे हो, प्रैक्टिकल तो पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, वेब सेशन में भी होते हैं. आपको ऐसा बोलते हैं कि आपकी स्क्रीन शेयर करो, देन यू कैन राइट डाउन दी कोड एंड द इंटरव्यूअर विल वॉच दैट व्हेनेवर यू आर कोडिंग. तो यूजुअली दैट हैपन्स. इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती है वेब इंटरव्यूज में. बट अभी ऐसा होने लगा है कि इवन इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन फॉर क्यूएस, उस वहाँ पे भी यू वुड हैव सम सिनारियो जो आपको इंटरव्यूअर वहाँ पे देते हैं, और वो सिनारियो में व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू वुड फॉलो, वो वहाँ पे आपको राइट डाउन करने का बोलते हैं. नॉट ओनली दैट, दे टेल यू टू राइट डाउन दी शेल स्क्रिप्ट्स. तो ये सब चीज़ें भी अभी मैंडेट होने लगी है, बिकॉज एवरीबडी नो कि काफ़ी सारे लोग कैसा होता है कि थियरी में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मगअप कर लेते हैं. और मैंने देखा है, मेरे ही बैच में ऐसे बंदे थे जो प्रोग्रामिंग में मतलब जिनका दिमाग इतना नहीं, प्रैक्टिकल में दे कैन नॉट डू मच ऑफ अ थिंग, बट थियरी में दे कैन स्पीक अप एनीथिंग, दे कैन राइट एनीथिंग. बट कैसा होता है कि ये सब जो जॉब्स होने लगी है ना, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए. इफ इट इज नॉट दैट, वो थोरो नहीं होते. सो थियरी के क्वेश्चन भी पूछते हैं, दैट इज मैंडेटरी. बट हाँ, अभी प्रैक्टिकल भी मैंडेटरी हो गया है. दे विल गिव यू सिनारियोस, इवन इफ यू डू नॉट नीड टू राइट डाउन कोड, बट सिनारियोस देंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपको सॉल्यूशंस देने होंगे. तो दैट इज वेरी मच मैंडेटरी इन एवरी इंटरव्यू नाउडेज. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों प्रैक्टिकल, जो हम सिनेरियो का आउटकम देंगे प्लस जो भी प्रोग्राम है वो लिखेंगे, उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और प्रोग्रामिंग का आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके अंदर एक ही चीज़ है, वो मैंडेटरी है कि ये सब चीज़ों की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की आप प्रैक्टिस करते रहो. इफ़ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन फॉर कोडिंग, आई हैव फ्यू रेफरेंसेस कि जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सको. एक साइट है जिसके लिए मैंने गूगल के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था. अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट इन माय कंपनी, बट आई हैव प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम a website called LeetCode. Let me give you its reference. Yes, sir. They also have solutions of problem in different ways. Correct. So who is this? Sir, Mahek. Mahek, sir. Yes, Mike, you are right. So इसके अंदर है ना प्रॉब्लम्स दिए होते हैं. यूजुअली गूगल के अंदर जो भी इंटरव्यू देते हैं ना, ये सब प्रॉब्लम्स क्रैक करके बाद में ही इंटरव्यू देने जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे ना कि इसमें से तो ऑब्वियसली नहीं होगे, बट इसमें से आपका लॉजिक शार्प होगा. तो लेट अस सी वन एग्जांपल.
ओके, इसके इजी क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉजिक होगी, जिसमें इसमें क्या करना है कि given an array of integer nums and the integer target, return the indices of two numbers such that they add up to the target. तो इसमें कैसा बोला है कि नंबर का एक अरे है, टारगेट दिया है 9 और आउटपुट है 0 1. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द इंडाइसिस ऑफ दैट अरे जिसके अंदर सम इसका आएगा 9. तो इसके अंदर बोला है 0 और 1, 2 + 7 इट इज 9. तो इसमें भी लॉजिक तो आपका टेस्ट हो ही जाएगा, और यूजुअली इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं विच वुड बी इजियर, बट उसका लॉजिक आपको ऑन द गो राइट डाउन करना होगा. तो मैं तो इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन पूछता हूँ प्रैक्टिकल में. एक क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर ये क्रैक करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है. थोड़ा हार्ड मतलब इसके ऊपर कोई लॉजिक चलाना होता है, जैसे कि ये अभी इसके इंडाइसिस दिए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी ये सॉर्ट करके देना है मुझे. ये अरे है, सिंपली वो सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करके उसका सेकंड लार्जेस्ट नंबर को मुझे बाहर निकाल के देना है. वो ऐसा दूसरा क्वेश्चन फॉर्म कर सके. दैट इज जस्ट वन एग्जांपल, बट ये दूसरा हम ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. तो यस, आपको प्रैक्टिस करनी है तो दिस साइड इज वेरी गुड, और इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है विथ इट्स डिफिकल्टी. वहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड, इजी, मीडियम, हार्ड, ये सब क्वेश्चन आप परफॉर्म कर सकते हो, नो डाउट. इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे हार्ड होते हैं, बट आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे. एंड आई होप कि सॉल्यूशन देखे बगैर खुद इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो फर्स्ट. पहले 5 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, बट इफ़ यू गेट अ ग्रिप, बाद में आप फटाफट करते जाओगे. That's what I experienced earlier. Okay, coming back to practical examination when we are giving interview. Understand the program thoroughly. जैसे कि अभी एक हमने प्रोग्राम देखा, उसके अंदर नो डाउट एक बार आपको पढ़ना पड़ा. देन आफ्टर हम सॉल्यूशन देखा, देन वी स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दैट. बट यूजुअली मैंने देखा है कि मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ, वो राइट डाउन भी करते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क. वो वहाँ पे फंक्शन लिखते हैं जो भी बनाने का होता है, कैलकुलेट समथिंग, ऐसा कुछ फंक्शन होता है. तो दे यूज टू राइट इट डाउन. फिर क्या होता है मैं लॉजिक समझाता हूँ. यूजुअली मैं लॉजिक भी नहीं समझाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है. जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो देयर इज वन स्ट्रिंग, not a string, there is one word. So let's say the word is intelligent, and मैं उसको एक डिक्शनरी देता हूँ, and dictionary would have all the words. फिर क्या करना होता है कि that dictionary have some of the words, but काफ़ी सारे words उसमें missing है, और ये दूसरा जो word है वो find out करना है कि whether it contains in the dictionary or not. No doubt इसके अंदर बहुत सारी utility है, जिसके अंदर we can break it down all the dictionary words into particular array, और array में से हम find out कर सकते हैं वो word directly from content. But what usually interviewers say कि do not use any of the existing method. कि content से वो use मत करो, खुद का logic लिखो. What would you do in that case? So in that case, you need to write down your own logic. इसमें प्रोग्रामर यही समझना चाहता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि नहीं प्रोग्राम. ये पूछा गया, बाद में यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, और मल्टीपल फ्लो इसके आपको डिसाइड करने होते हैं कि इसमें फिर जैसे कि एक वर्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि इंटेलिजेंट एक वर्ड है, फिर इंटेल एक वर्ड है, वो उसको ब्रेक करके फाइंड आउट करना है कि सिमिलर वो वर्ड ही फाइंड आउट करना है डिक्शनरी में. दैट यू कैन आस्क, और ये सब फ्लो क्लियर होने चाहिए, बिकॉज यूजुअली टेस्ट के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस के आंसर आपके सफाइस होने चाहिए, और वहाँ पे ट्रू रिजल्ट आना चाहिए. ऐसा होता है. इफ़ यू वांट टू हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस टेस्ट, तो उसके लिए भी साइट है, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, बट आई विल शेयर यू गाइस. अगर आप मुझे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, यू कैन कनेक्ट देयर एंड यू कैन आस्क दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. सर ऐसा होता है कि कभी कभी इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हमें देते हैं, तो पर्पसफुली वो लोग ऐसा करे कि क्वेश्चन का जो पूरा सिनेरियो है वो क्लियरली हमें ना समझे, और वो हमसे एक्सपेक्ट करे कि हम उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे क्वेश्चन का. होता है ऐसा, क्योंकि
काफी सारे इंटरव्यू में लोग समझना चाहते हैं कि ये बंदा दो तरह के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वन इज फॉलोवर एंड सेकंड इज थिंकर्स। तो आपको थिंकर्स बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। तो थिंकर जानना है, थिंकर कौन है, कौन सोच सकता है, कौन अपना दिमाग चला सकता है, वो चीज देखने के लिए ये सब चीजें, ये सब ट्रिक्स है। तो ऐसा करेंगे, आपको एक सिनारियो दे देंगे, बोलो एक करो। अभी आपको जाके पूछना है कि इसके मल्टीपल फ्लोज है, ये 4 फ्लो है, ये मुझे दिख रहा है, इसमें क्या करना है। तो 2 चीजें इससे पता चलेगी, एक आपका दिमाग चलता है, दूसरा कि आपका विजुअलाइजेशन क्लियर है। और अभी ये चीज बहुत मिसिंग है, काफी सारे लोगों में अभी विजुअलाइजेशन है ही नहीं। एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टास्क दिया होता है ना, दैट नीड टू थिंक एज अ एंड यूजर, दे नीड टू थिंक एज एन एडमिन। वहां पे सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो भी होता है वो कोड में आपको फॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन आपको एक ही वे में कंप्लीट कर देना है। तो सेम गोज टू दिस इंटरव्यू, जो सॉल्यूशन आपको देगा ना, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन देगा वहां पे। तो आपको फिर फाइंड आउट करना है कि दूसरे फ्लोस इसमें कवर करने हैं कि नहीं करना है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो या दिमाग खुला रखो तो आपको भी पता चलेगा कि उसमें क्या क्वेश्चन होंगे। राइट सर। सो मेनली यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। वो अवेयरनेस चाहिए, अटेंटिवनेस चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके ओके, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम thoroughly. First write down the solution, then optimize. ओके, तो इसमें ऐसा पॉइंट है कि यूजुअली कोडिंग में काफी सारे लोग अच्छे होते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। बट फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक ऑफ एन एल्गोरिदम, दैट्स इट। एक बार एल्गोरिदम आप इंटरव्यूअर से कंफर्म कर दोगे ना, जैसे कि अभी वो सॉल्यूशन था कि अभी हमने लीड कोड में वो प्रोग्राम देखा जिसके अंदर हमको समेशन करना था फ्रॉम द इंडेक्सेस ऑफ दैट अरे, राइट। उसका एल्गोरिदम आप एक बार बता दोगे इंटरव्यूअर को, तो इट विल प्रीटी मच क्लियर कि आपको एल्गोरिदम पता है, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन कोड फॉर इट। तो इट वुड बी प्रीटी मच इजियर फॉर इंटरव्यूअर एज वेल कि इसका दिमाग चल रहा है, इसका लॉजिक क्लियर है। अगर एल्गोरिदम सही है तो आपके 50% वहां पे चांस क्लियर हो जाता है प्रैक्टिकल क्लियर करने के। सेकंड, कि आप सॉल्यूशन पहले फॉर्म करो अगर आप राइट डाउन कर रहे हो कोड, तो कि ऑप्टिमाइजेशन वहां पे कोई 10% उसका इम्पैक्ट होता है, 90% इज हाउ यू राइट डाउन द कोड एंड उसका आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो आता है कि नहीं, वो उसका होता है। ऑप्टिमाइज पे वहां पे फोकस नहीं करना है। डोंट चीट अगेन, एज आई मेंशन अर्लियर, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम नहीं आता है तो फिर मोबाइल में देख लो टाइप करके, वो आपकी नज़र ऐसे ऐसे हटेगी ना, वो पता चल ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है आपको मोबाइल में देखना है तो आपकी नज़र काफ़ी सारे 5-6 टाइम पे वहाँ पे जाएगी। तो वो नहीं करना है, वो एथिकली भी रॉन्ग है। और अगर आप गलत करोगे तो फिर उसके इम्पैक्ट सही में अच्छे आएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ में आप अभी गलत कर रहे हो, जो आप इंटरव्यू में अभी प्रोग्राम के लिए चीट कर रहे हो, वो ही चीज़ आपको फिर वहाँ पे भी कंपनी के अंदर भी पूछी जाएगी। और यूजुअली अभी तो 2-2 इंटरव्यू लोग लेने वाले हैं, क्योंकि ले रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज वन इज ऑन वेब एंड वन इज ऑन प्रीमाइस। ये पेंडेमिक के बाद ये ट्रेंड अभी चालू हुआ है कि ऑन प्रीमाइस भी अभी 3 मंथ प्रोबेशन में लोग रखते हैं। प्रोबेशन मतलब काफ़ी सारे टाइम से अभी मैंडेट हो गया है। वो प्रोबेशन के अंदर ऐसा ही होता है कि देयर इज़ वन लीड जो आपको कंटिन्यूस वॉच करेगा, और उसके अंदर यू माइट हैव एक्सेस टू इंटरनेट और काफ़ी सारे सॉल्यूशन आप फाइंड भी कर सकोगे, बट देयर हैज़ टू बी अ केस कि जिसके अंदर आप फेल हो जाओगे। सो डोंट चीट। तो वो चीज़ माइंड में रखनी है। इम्प्रूव लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग, यस, एज आई सेड अर्लियर कि वहाँ पे आपको कोडिंग करते करते लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग इम्प्रूव करना है। नॉट ओनली दैट, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे दूसरे वेज भी है, और काफ़ी सारे वेज आप लोगों को भी पता होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो टेल मी, इसमें कौन सी चीज़ें हो सकती है लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग इम्प्रूव करने के लिए? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी और कैन गिव एनी वे वेयर आई कैन डू दैट? जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, सो आई वुड से कि यू शुड वॉच क्रिएटिव प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स, इवन इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस आते हैं, वो भी देख सकते हो। एनीवन एल्स हैव एनी सजेशन?
सर अगर सजेशन दूं तो सर सबसे पहले तो सर बेसिक क्लियर करना पड़ेगा अगर नहीं क्लियर है तो, और दूसरा कि जो प्रॉब्लम है तो ऐसा सोच के हम अपना कोड या एल्गोरिथम ये सोचे कि ये प्रॉब्लम हमारा खुद का ही है, और सामने सामने वाला जो मतलब कि जिसको सॉल्यूशन यूज करना है तो उसके नजरिए से देखे तो कैसे हम उसको अच्छा बना पाए। Yes, so that thing is specific to whatever you have given in as a program. But ये ग्लोबल चीज की बात है कि अभी मुझे पता है कि मेरा दिमाग है ना, जितना फास्ट चलना चाहिए ना लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए, उतना फास्ट नहीं चला। यू नो दैट। सो उसके अंदर आप क्या करोगे? तो उसके अंदर है ना बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन अडेप्ट टू। या दिस इज वन कि आपको पता है कि आपको सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे कोड करना है, दैट इज वन। बट यूजुअली कैसा होता है कि व्हेनेवर यू आर गिविंग इंटरव्यू, तो वहाँ पे एक कंपनी नहीं होगी, 10-15 कंपनीज होगी वेयर यू वुड बी गिविंग द इंटरव्यू, और आप उनके साथ अडेप्ट नहीं होगे। बट आपका माइंड चले ना, वो जो कॉमन चीज है जो हर इंटरव्यू में काम आएगी ना, वो आपको सॉल्व करना है। सो या दैट इज वन थिंक कि आप वही कोडिंग की प्रैक्टिस करो। व्हाट्स द अदर वे? Who is this? Shivam? Are you there? Can you answer? No, sir, I don't know. Okay. Sonia, can you? So rather giving answer in chat, please speak up. Yes, sir. It is okay. Even if you answer in Hindi, I'm okay with it. I was actually saying that we can improve it by exploring more and more on YouTube, on Google. Yes, but उसमें क्या आप वो ऐसा सर्च नहीं कर सकते कि मतलब बर्गर कैसे बनाए, या तो फिर वो सब चीजें, मतलब कार्टून कैसे देखे, पबजी के लाइव वीडियोस, वो सब नहीं देखना है। उसके अंदर आपको क्रिएटिव थिंग्स आपको एक्सप्लोर करनी है। Right. यस, सो क्रिएटिव थिंग्स मतलब क्या? यूजुअली क्रिएटिव शो बहुत कम हो गए। सो उसके अंदर मैंने जो एक्सप्लोर किया है ना, नेट जियो इज वन ऑफ द चैनल्स दैट यू शुड एक्सप्लोर। फिर आता है, फिर हिस्ट्री चैनल इज ऑल्सो हैविंग सम क्रिएटिव शोज। सो नेट जियो पे मैं दो तीन प्रोग्राम सजेस्ट कर सकता हूँ। वन इज ब्रेन गेम्स विच इज़ वेरी मच इंटुइटिव। उसके अंदर बहुत अच्छे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसमें दिमाग चलाना होता है, और मतलब एज इट ऑल्सो हैज अ टाइटल ब्रेन गेम्स, उसमें ब्रेन गेम्स पूरी खिलाते वो लोग। दैट इज़ वेरी गुड। अगेन दूसरा एक प्रोग्राम आता है स्ट्रीट जीनियस। इट इज़ अबाउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दैट इज हेल्ड बाय यू नो प्रैक्टिकल थिंग्स। सो इट इज़ प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। ये सब शो देखना चालू करो। नो डाउट इसमें है ना इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स को, एंड दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर यू नो लॉजिकल रीजनिंग। नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो यू नो ट्राई इट आउट सम पजल्स। कोई पजल आप ट्राई करो, इंटरनेट पे बहुत सारी पजल्स अवेलेबल है, और वो पजल्स आप देख सकते हो, पजल सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये कैसा होता है कि ये है ना स्पेसिफिक, तो फिर प्रोग्रामिंग हो जाता है। ये फिर आप चीज़ें करोगे ना, सिर्फ प्रोग्रामिंग कर करोगे, तो फिर ह्यूमन टेंडेंसी है कि फिर आप बोरिंग उसमें आपको लगेगा वो सिर्फ कोडिंग ही करना। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू शुड सॉल्व पजल्स। पजल्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अंदर आप काफ़ी सारी पजल्स आपको पसंद भी आएगी, एंड यू कैन गेट एडिक्टेड टू दैट। तो वो भी लिमिट में करना है, बट पजल्स कैन इम्प्रूव योर लॉजिकल रीजनिंग। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। यस सर, एंड सर नेट जियो पे वो भी है ना, लाइफ हैक्स, फिर वो साइंस का, साइंस ऑफ स्टूपिड, साइंस ऑफ स्टूपिड लाइफ हैक्स है, अगेन, साइंस। या मतलब साइंस ऑफ स्टूपिड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट जॉनर। उसके अंदर तो सिर्फ फन थिंग्स दिखाते हैं। नो डाउट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फन, बट ये क्रिएटिव चीज की बात करें, सो यू आर राइट, लाइफ हैक्स में अच्छा आता है। बट आई अंडरस्टैंड कि उसके अंदर 50% चीजें हमारे पास वर्क नहीं करेगी, बट स्टिल वो क्रिएटिव है। सो आई एग्री टू दैट पॉइंट। यस, और दूसरा है कि यू कैन
यू कैन ऑल्सो रीड बुक्स जो क्रिएटिव है, जो आपको लाइफ के अंदर काफी सारे एस्पेक्ट, क्योंकि आप ये एक बार इंटरव्यू मतलब ये जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, आप कोई कंपनी में जाओगे, योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज। तो आप कैसे अडेप्ट करोगे सब चेंज को, आप कैसे ऐसी लाइफ जियोगे जो आपको हकीकत में चाहिए। तो वर्क सिर्फ नहीं है, आपको हेल्प करे हाउ टू लिव लाइफ, ऐसी बुक आप रीड करना चालू करो। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड वन ऑफ द बुक, जो मैं हर एक बंदे को जो भी मुझे मिलता है उसको, नो डाउट ये सेशन के रिलेटेड नहीं है, बट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज अ बुक विच आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है विच वुड ब्लो योर माइंड। Yeah, so that is how you can improve your logical reasoning and thinking. Do anyone have any points over here, or you can continue? No, sir, continue. Okay. सर भाविन का क्वेश्चन है, वही मेरे को क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन? Come again. Who is सर this? चैट में भाविन ने जो क्वेश्चन लिखा है प्रांशु शाह, मेरे को एक क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन? Okay, so the question is, if we convince interviewer of particular program logic, but somehow we can't execute code, then what? Of course, if you cannot execute, okay. So what I understand by you cannot execute the code, you cannot, derive the output, right? So when you cannot derive the output of a program, there are less chances that you would get selected. But yeah, how you can overcome that? Yeah, you can also, give him a valid reason why you couldn't do that. But usually आपका दिमाग चल रहा है उस टाइम पे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है वो, क्योंकि सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं यूजुअली इंटरव्यूज में, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, ऐसा नहीं बोलता कि 4-5 चीजें मुझे करके दो, ये मल्टी थ्रेडिंग के कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, वो सिंपल प्रोग्राम होता है विच कैन बी कंप्लीटेड इन 20 to 25 मिनट्स। अच्छी कंपनीज में, नो डाउट देयर आर अदर कंपनीज जो पहले हमको ऐसे प्रोग्राम देती है जो हम घर से ही कर सकते हैं, उसके अंदर तो इंटरनेट की हेल्प से यूजुअली लोग आउटपुट ले ही आते हैं। बट दिस इज द थिंग वेयर whenever we are whenever we are writing program in front of the interviewer, तो उसके अंदर तो वही है कि आप प्रैक्टिस करो, आउटपुट तो लाना ही चाहिए। एज आई सेड कि ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो चलेगा, बट आउटपुट आना चाहिए। तो या वो अल्गोरिदम एक्सप्लेन करने से 50% चांसेस ये है, और अल्गोरिदम अगर सही में सही होगा आपका, तो आप आउटपुट ला ही सकोगे, देयर इज नो अदर वे। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? sir. Yeah. Yes, sir. Yeah, so Pranshu, are you opting for or are you interested in a programming role? Okay, how many of you are, interested in programming roles, and how many of you are interested in something like QA and other stuff, business analysis and other? I hope. Okay. So I see a lot of you are, into programming. I assume that a lot of you. Okay. Anybody having any question? Yes. Sir, hello. Yes, yes. Mahesh Who is here. Yes, Mahesh. सर हाँ, अगर इंसान प्रैक्टिकल सोचता है ज़्यादा, प्रैक्टिकल है, और मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो उसके बीच में जो टाइम गैप है वो कैसे फिल करे? प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल आपको आंसर क्वेश्चन पूछा है? आंसर मैंने दे दिया, आंसर मैंने दे दिया। अब पता नहीं कि मैं आगे क्या बोलूँ, तो उसके बीच में टाइम गैप कैसे फिल करे? मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है और प्रैक्टिकल एग्जाम का आपने एल्गोरिदम बता दिया है, ऐसा बोल रहे हो? सर इंटरव्यूअर ने मुझे कुछ पूछा और मैंने उसका आंसर दे दिया, अगर
Okay. Okay. तो उसके बाद इंटरव्यू और हमारे बीच में टाइम गैप रहती है जो, तो वो कैसे फिल करे पता नहीं। अच्छा, उसके अंदर यू शुड बी काम एंड कंपोज। आप इंटरव्यूअर को देखो, उसे ऑब्जर्व करो और अपने मन में ही आप है ना वो सब, मतलब आपके मन में ही आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, तो आप कैसे आंसर करोगे। एज आई सेड अर्लियर, किसी का एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अभी हम खुद को काम कैसे करें, तो यूजुअली यू कैन गिव अ सिंगल सेंटेंस आंसर एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट आंसर। उसके बिना आप काम होने का ट्राई कर सकते हो। यू शुड गेट कंपोज इन बिटवीन। तो गैप तो वैसे ही रहेगा, कोई भी दो क्वेश्चन के बीच में गैप तो रहेगा ही। तो यूजुअली जो एमएनसी होती है जहाँ पे 100 ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं और वहाँ पे फटाफट क्वेश्चनिंग होते हैं ना, वहाँ पे तकलीफ होगी। बट यू शुड नॉट गो इन दोस इंटरव्यूज व्हेनेवर देयर आर वॉक-इन्स और मास इंटरव्यूज अंटिल यू हैव अर्जेंसी। तो ये सब चीज़ें तभी पिक्चर में आती है कि इंटरव्यू आपका फास्ट रहता है, बाकी गैप तो रहेगा ही। वो फिल इन करना इज नॉट नेसेसरी, तो उसमें काम रहो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। Hello. Yes, Yes, Darsh? Adarsh here. Yes, Darsh, tell me. Sir, I'm not good with programming like coding. Okay. So, sir, is that okay to mention to interview that I'm not good with that, like in such a way? So one, are you applying for the programming then? Are you applying for the developer position then? Okay. So, sir, in which way you have to convey that, like I'm not good with that? Like So, you did. Okay, so which role you are interested in, Darsh? If you are not So good first at of all, programming, I'm interested in networking, like network engineering. So first of all that, and secondly, sir, programming. okay, but as you said, you are not much interested in programming, so you should always go for the networking thing. Any network admin role, any networking role, you should go for it. So yeah, if you do not have interest, do not apply. So first of all, what happens, sir? Networking have a sir less amount of job, okay, and there is not highest salary paid jobs in networking. So it might be possible I'm go with the programming, okay, sir. That is pretty much the mindset of the MCA guys, that we need to go for programming, and that is why we sometimes we do not have that enthusiasm or a will that we need to have in programming. So वो actually नहीं करना है। अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप आफ्टर यू डू एमसीए। जैसे कि अभी एक यहाँ पे मैंने देखा, डिजाइनिंग है, डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस में ना जाओ क्योंकि उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग आएगा, सो आप उसमें ना जाओ। तो देयर इज रोल ऑफ क्यूए जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस करना है, बीए का रोल है बिजनेस एनालिसिस करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ रोल्स। इसके अलावा भी मैनेजरियल रोल इसके बाद आपके पास रेडी है। तो प्रोग्रामिंग इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। प्रोग्रामिंग इसी के लिए, वही बंदों के लिए जरूरी है जिसका लॉजिक चलता है, जिसको दिमाग चलाने का इतना एंथू है कि वो प्रोग्रामिंग में भी उसके लिए वो एफर्ट कर सकता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में गुड नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ रोल्स अवेलेबल। डोंट गो फॉर प्रोग्रामिंग इफ यू आर नॉट गुड एट इट। हाँ, आप दूसरी चीज कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना ही है, मेक एन इंटरेस्ट इन इट। कैसे इंटरेस्ट डेवलप करोगे? पजल सॉल्व करो, देन डू सम प्रोग्रामिंग। Okay, sir. Thank you. Okay. I think let us conclude. Now, anybody having questions? Somebody ask DBA. सर, जैसा कि आपने बोला कि प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट नहीं हो, प्रांशु बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम किसी और फील्ड में जाते हैं, लेकिन हमारा फ्रेंड अगर प्रोग्रामिंग करता है, बाद में हमको ऐसा बोलता है, लेकिन ऐसा फील्ड होता है कि हमने उस टाइम पे प्रोग्रामिंग क्यों नहीं किया, तो मतलब उसका क्या कोई सॉल्यूशन? तो यूजुअली ये चीज क्यों होती है? क्योंकि है ना, हम सैलरी कंपेयर करते हैं। यस सर। यस, तो यूजुअली प्रोग्रामर्स की सैलरी हाई होती है कंपेयर टू अदर। बट हम पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, बट हमारे पास वो लाइकिंग ही नहीं है वो चीज के लिए, सो यू विल फेल इवेंचुअली। आपके पास पैसे ज्यादा है तो भी फिर आप उससे ज्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। एंड इफ यू गो इन द फील्ड वेयर यू हैव इंटरेस्ट, तो बाद में आप पैसे कमा ही लोगे, ट्रस्ट मी। तो गो फॉर योर इंटरेस्ट। यस सर, थैंक यू। This is Paras here. Hello. Yes, Paras.
Sir, my first question is BBA role for organization where less coding Yes. instead of programming, which has a lot of logicals and codings. Yes, BA is one of the role which I find pretty much interesting. बिजनेस एनालिसिस में आपको पूरा बिजनेस स्टडी करना होता है, जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा एनालाइज करना होता है, उसके मुताबिक आप बिजनेस डिसीजन आप कंपनी को देते हो. इट इज वेरी मच क्रिटिकल. आप ऐसे डिसीजन लेते हो कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें आएगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि उसमें से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा. तो BA इज वन ऑफ द रोल दैट आई फाइंड वेरी मच इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर लॉजिक आएगा बट कोडिंग नहीं आएगा. दूसरा है कि प्रोग्रामिंग आप करोगे पर कितने ईयर तक करोगे. यूजुअली 8 ईयर 9 ईयर, उसके बाद यूजुअली प्रोग्रामर्स मूव होते हैं टू टेक लीड्स, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग बहुत कम आता है. देन आफ्टर देयर आर रोल ऑफ मैनेजर, सो उसमें कम ही होगा इवेंचुअली. तो क्या फॉर अ स्टार्ट BA एंड QA आर दी रोल्स. QA में भी काफी लॉजिक लगता है बिकॉज दे हैव टू थिंक ऑफ लॉट ऑफ सिनेरियोस. So BA and QA is one of the role. Sir, with BA, I was also asking for database administrator, DBA. Like I am pretty much good in handling databases. Yeah, but still working you cannot get rid of programming there because you need to write database procedures, which itself has different programming languages. अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है. जैसे कि ओरेकल के अंदर आप PL SQL में करना पड़ता है, और कंपनी में जाओगे सो दैट देयर आर ह्यूज प्रोजेक्ट्स, तो उसके अंदर यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस. Okay, and sir, second is how we can kindly ask for such timing. Like I want some time for thinking. So in our case, it will be not work like for drink water, or else like I am just uncomfortable and fitting comfortable for us. It is So totally this is okay. not suitable for us. No. It is totally okay if you are never tell him that I'm pretty much nervous because I'm giving the interview after a while, or whatever the reason. Be frank. Ask him to give yourself time for 1 or 2 minutes. Nobody would mind. So you can go outside, roam around, and come back. Yeah, you can calm your nerves. You can drink water. You can do whatever you want. So yeah, if there is a good interviewer, he would always allow you to take a 2 or 3 minutes break. No issues with that. Be frank for whatever you are feeling. Oh, sure. Thank you, sir. Thank you for guiding. Welcome. Hello. Yes, who is this? Sir, Nisarg here. Yes, Nisarg. Sir, my question is how AI can impact IT industry and especially for software developers in near future. So this is actually out of the scope question. Still, I'll give you a short answer in this. AI would be a future, and yeah, we are also in our company. We have initiated AI, and fortunately, I get the command of that. So I am also into AI nowadays, and it is the future. And whomsoever is interested in AI, have a huge career ahead because. Right now industry have a lot of projects in AI, but they are having shortage of people because there are less people in AI currently. Okay, sir. सर महक हियर. सर लास्ट क्वेश्चन. सर इंटरव्यू जब खत्म होता है तो कभी कभी इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो हम इंटरव्यू को क्या क्वेश्चन कर सकते हैं या True. So ये लास्ट क्वेश्चन वही था कि इंटरव्यू वुड आस्क डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. सो डोंट से नो, दिस इज अ ट्रैप. डोंट से नो. ये कैसा ये जानने का ट्राई कर रहे हैं आर यू रियली इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू द कंपनी, और आप एंथू हो कि नहीं. सो वो सब चीजें, ये ट्रैप है एक्चुअली. ये आपको इसमें आंसर देना है कि यस आई वांट टू नो सम थिंग्स, और एटलीस्ट कंपनी के बारे में पूछा, आपका रोल एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में पूछ सकते हो, और उसमें ट्रस्ट भी पैदा होता है. दूसरा ये होता है कि 50% you would know कि you would get selected or not. आप ये भी पूछ सकते हो कि जो कंपनी में अभी रोल है would I fit into that. You would directly or indirectly know 50% आपके चांसेस है कि नहीं है. So I always ask. Usually when I have the interview, I always ask this. Right, sir. Then, sir, if we say yes, sir, Hardik here.
Just tell me, Arif. Yes, in answer we say yes, I have a question, और तो क्या बोल सकते हैं उसको, मीन्स व्हाट इज योर रोल या फिर व्हाट डू यू वर्क, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक नहीं नहीं इंटरेक्ट नहीं नहीं करने नहीं, का। उनको नहीं पूछना है, दैट इज नॉट आवर मतलब बिजनेस टू आस्क सिंपली कि आपका रोल क्या है। सिंपली से नो, नो आई डोंट हैव एनी नहीं नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो है ना, इंटरेक्टिव स्किल आपकी भी देखता है कि आप इंटरेक्टिव हो कि नहीं, ऐसा भी देखता है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं कंपनी में। सो यू कैन आस्क कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस और आइदर योर रोल रिलेटेड क्वेश्चंस कि मेरा रोल यहाँ पे फिट होगा कि नहीं होगा, एंड इफ आई जॉइन व्हाट वुड बी माय रोल, राइट। ऐसे सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉट ओनली दैट, कंपनी में अभी उसका रोड मैप क्या है, ये अभी तो मैंने पूरा वेबसाइट में ये देखा है, ये सब एक्टिविटी में मतलब ये सब हम फंक्शनलिटी दे रहे हैं, ये सब सर्विसेज में काम कर रहे हैं। डू यू हैव एनी फ्यूचर इन एआई? मैं यूजुअली ये भी पूछता था बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन एआई। ये सब आप पूछ सकते हो। ओके ओके। Sir, actually, my Pranshu बोल रहा हूँ. My friend Hamza has asked the question, what experience need to start up in IT business? For a startup, you need money, capital. That is the main thing. And second is you need a guide with you. जो बंदे के पास विजन होता है, जो बंदी या बंदे के पास विजन होता है, you can always go with that guy. क्योंकि कैसा होता है कि सब ट्रेडिशनल वे में तो सब ट्राई करते हैं. You need someone who can analyze everything and come up with something different. आपको क्लाइंट मतलब कोई भी कस्टमर को एक ही एक चीज दे करोगे, जैसे कि अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर है, तो पहले से उसका मार्केट है. somebody you would need to analyze everything. तो ऐसा कोई बंदा चाहिए. दूसरा बंदा ये चाहिए कि उसमें से बिजनेस ला के दे. तो यू नीड टू हैव दैट टीम. और इसमें ईयर्स नहीं, इसमें मनी मैटर करता है एंड द पीपल दैट यू वुड इंक्लूड इन द टीम, वो मैटर करता है. इफ यू हैव इट देन यू कैन डू स्टार्टअप टुमारो इटसेल्फ. Okay, sir.